Hello students, in today's video we are going to read about the opportunity cost, its importance and limitations. So as we move from one end to the other in production possibility curve, then the production of another good decreases as the production of one good increases. In other words, in order to increase in the production of one good, we have to sacrifice another good. We will understand the meaning of these words through the example. You can see this chart, production possibilities and marginal opportunity cost. So production possibilities, there are 5 production possibilities are given. Here 2 goods are here. First one is car and second one is computer. So if the production of car is 0, then computer's production is 12 lakh. So marginal opportunity cost of car in the form of computers, that is nil. Second possibilities is if the production of car is in 1000, then computer's production decreases 11 lakh. मीन्स 1 लाख डिक्रीज हुआ, तो ये जो डिफरेंस है यही क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, एक चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है. एक का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो जिसका डिक्रीज हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और वही चीज क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है. थर्ड कॉम्बिनेशन इज कार का प्रोडक्शन इंक्रीज करके 2000 कर दिया गया, तब कंप्यूटर का प्रोडक्शन कितना हो गया, 9 लाख. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 9 दैट इज 2. थर्ड वन इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 3000 cars while the production of computer in only 6 lakh. तो ये आप देख रहे हो, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है जबकि दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहा है. यहाँ पे 6 लाख कंप्यूटर का प्रोडक्शन हो रहा है जबकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ओनली ये 3 में डिक्रीज होके आप देख रहे हो. नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ई वाला कॉम्बिनेशन. इसमें 4000 कार का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तब कंप्यूटर का प्रोडक्शन यहाँ पे नील है. और इस तरीके से ये जो प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है वो कितनी हो गई है, 6 हो. सो वाइल थ्रू द एग्जाम्पल इन टेबल 2.1 we will moving from alternative B to alternate C, that is on increasing of production of cars from 1000 to 2000, that is in order to produce one additional unit of car we will have to sacrifice the production of 11 minus 9 2 lakh computer. This means at the point C the marginal opportunity cost of producing 1000 cars will be 2 lakh computers. In the same way, at the point D, marginal opportunity cost producing 1000 car will be 3 lakh computers. So, with the viewpoint of economics, the opportunity cost of one additional unit of a good amounts to the quantity sacrificed of another good. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जो दूसरी जो चीज है उसकी कितनी क्वांटिटी को सेक्रीफाइस किया गया है, उसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा. In fact, the concept of opportunity cost is based on the problem of selection which emerges due to limitedness of the resources. As we all know, generally there are alternative uses of most of the resources. The requirements are unlimited and resources available to satisfy them are limited.
Therefore, if a person wants to obtain good, then he will have to sacrifice good B because he has limited resources. तो रिक्वायरमेंट्स हमारी सभी चीज़ों की क्या है, अनलिमिटेड रहती है, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास कितनी रहती, कैसी रहती है, वो लिमिटेड है. तो जैसे एक पर्सन को अगर कोई गुड ए चाहिए है तो उसके लिए उसको गुड बी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं. नॉर्मली आप समझें कि आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज हैं और उससे आप कुछ दो ऑप्शन हैं आपके लिए कि आपको मेडिसिन परचेज करनी है और ड्रेस परचेज करनी है. तो आप पहले क्या परचेज करना चाहोगे? पहले आप मेडिसिन परचेज करना चाहोगे क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा. तो यहाँ पे और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि एक चीज को परचेज करने के लिए दूसरे चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो. तो उसी को ही क्या कहा जा रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जा रहा है. क्योंकि बात क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अनलिमिटेड है, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स को फुल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. The following are the two important things in context to opportunity cost. That first one is opportunity cost does not refer to sacrifice of any alternative, rather it refer to sacrifice of the second best alternative. And second one is it is essential that production of second best alternative should be possible by utilizing the same quantity of resources at the same cost. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एक वर्कर को जो है he can find a work at 3 places in which other things remaining same he gets 80 rupees, 60 rupees and 50 rupees. तो इसको वर्कर को कितने रुपए का काम मिल सक रहा है? एक जगह पे उसे 80 रुपीज का मिल रहा है, एक जगह पे 60 का, एक जगह पे 50 का. तो वो चूज क्या करेगा? चूज तो वो करेगा 80 रुपीज वाला, क्योंकि यहाँ पे बाकी फैसिलिटी सब चीजों की वो सेम है. तो कोई भी पर्सन क्या चाहेगा? जहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा हो वेजेस, उस चीज को वो यूज करे. लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो उसके पास ऑप्शन है वो क्या है? 60 और 50 का. So he has 2 more alternatives, but the second best alternative, that is 60, will be considered to be opportunity cost. तो नॉर्मली कोई भी पर्सन लेना चाहेगा कितना? इतना. लेकिन उसके बाद ये 2 ऑप्शंस उसके पास है, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? ये 60 वाला. तो यही चीज क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. किसी चीज को हम मैक्सिमम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. Let's read about the importance of opportunity cost. So first one is it is helpful in the distribution of the factor of production. So the theory of opportunity cost is helpful in the distribution of factor of production. According to this theory, one use every factor should be able to acquire as much as it would be able to gain from its alternative use. Major function of price mechanism is to distribute limited resources among competitive uses, and theory of opportunity cost helps in this. तो इसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी चीजें हैं उनको सबसे अच्छे ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को फुली यूज किए जाए और उससे डेवलपमेंट वर्क किया जा सके. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन द कॉस्ट. दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट टू व्हाट एक्सटेंट the cost of an industry can change along with changes in its production. If industry want to increase its production in the short term while attracting specific resources, then it will have to pay higher price for these resources. तो change हो सकता है cost में, cost of production में. क्यों? क्योंकि जब
जिस तरह की कंडीशन बनती है उस हिसाब से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनके प्राइजेस अलॉट किए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ रेंट. So according to the modern theory of rent, rent is the amount excess above the opportunity cost. Example, rupees 1000 is the incentive of one resource and its opportunity cost is rupees 800. Then the resource will be rupees 200. So opportunity cost is helpful in the calculation of rent. तो modern theory के according जो रेंट कैलकुलेशन में भी ये हेल्पफुल होता है. नाउ वी विल रीड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफिक रिसोर्सेज. दैट इज दोज रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू सिंगल यूज ओनली बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्स इज 0. तो ऐसे जगह पे यूज नहीं किया जा सकता या एप्लीकेबल नहीं है जो रिसोर्स क्या है, सिंगल यूज वाले हैं. जैसे पेट्रोल वगैरह एक बार आपने यूज कर लिया, उसके बाद आप उसको यूज जो है दूसरे जगह पे यूज करने की दिक्कत बन जाती है. नेक्स्ट वन इज दिस assumption of a concept that the factor of production do not have any disposition and they are fully dynamic is not right. तो यहाँ पे जैसे ये माना गया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है मूवमेंट नहीं करते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जहाँ पे अच्छा उसको रेम्यूनरेशन मिलता है वहाँ पे जरूर मूव करता है. हम नॉर्मली समझ सकते हैं जैसे लेबर, उसको अगर कहीं दूसरी जगह पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे या कैपिटल को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वो वहाँ पे मूव कर जाता है. तो यहाँ पे जो सेकंड अजम्पशन किया था कि ये डायनेमिक नहीं होते रिसोर्सेज, ये अजम्पशन रॉन्ग है. थर्ड वन इज दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंडीशन रियल लाइफ में नहीं होती. तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है? लिमिटेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो स्टूडेंट, I hope you can understand the concept of opportunity cost. Good day.